Hello friends, welcome to Poonam to our classes. Today through this video we will make you go through a quick revision of some Indian literary theories which are important part of IGNOU MA second year criticism subject, as well as all the theories are really useful for competent exam aspirants too. Please note down everything carefully, grab a pen and paper. This will be a sufficient revision if you have already prepared for this paper or attended the classes in our academy. Always go for a thorough study. This is something which I always suggest to my students. We make you go through all the important concept in our classes. Here we are doing it from revision point of view. So we will go in a little quick manner. In this particular video we will go for rasa and dhvani theory, and in next part of the video we will cover sphota, औचित्य and resistance theory. सबसे पहले करते हैं क्विक understanding of rasa theory, which was propounded in Natya Shastra, the book, and propounded by this person Bharata Muni. इंडियन एस्थेटिक्स थ्योरी है रसा. रसा का मतलब क्या होता है? रस. रस मीन्स जूस और एसेंस ऑफ समथिंग. इट कनोट्स अ concept in Indian arts about aesthetic flavor of any visual, literary, or musical work that evokes an emotion or feeling in the reader or audience but cannot be described. जब आप कोई मूवी देखते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं देखकर, कभी रोमांटिक फील करते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी आपके अंदर पेट्रियोटिज्म की फील आ जाती है. तो वो सब फीलिंग्स जो आपके अंदर आ जाती हैं किसी थिएटर वर्क को देखकर या किसी बुक को पढ़कर या किसी मूवी को देखकर, द काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट, द काइंड ऑफ इमोशन दैट यू फील, दैट इज समथिंग वी कैन कॉल इन सिंपल टर्म्स रसा. किसी भी मूवी, थिएटर या बुक के रसास को एक वही पर्सन एंजॉय कर सकता है जो थोड़ा सा सेंसिटिव है. हिंदी में हम उसे कहते हैं सहृदय, सेंसिटिव स्पेक्टेटर. लिटरली वन हु हैज़ हार्ट एंड कैन डू द वर्क विद इमोशन विदाउट एनी काइंड ऑफ ड्राइनेस. What will a dry person do? Dry person will try to find the logics and rationality in each and every scene and will not be able to enjoy. Actually, सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है. सहृदय, एक दिल रखना बहुत ज़रूरी है रसास को ठीक से एंजॉय करने के लिए. भारता मुनि गेव द 8 रसास इन नाट्य शास्त्र एंड एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट. नाट्य शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है जिसको कि भारता मुनि ने दिया था. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत काम आएगा ये फैक्ट. एंड एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ ड्रामेटिक थियरी एंड द परफॉर्मेंस आर रिटन बिटवीन 200 BC. इसका ईयर कंफर्म नहीं है. बिटवीन 200 BC 200 AD कहीं ना कहीं ये लिखा गया होगा. सो वी हैव अ टाइम स्पैन ऑफ 400 ईयर्स. अब देखते हैं एक एक रासा को. श्रृंगार रस. श्रृंगार रस एक सेंटिमेंटल सेंशुअल काइंड ऑफ फील है जो कि आपको रोमांस, लव या अट्रैक्टिवनेस ऐसा कुछ फील कराएगा. नेक्स्ट कम्स हास्य रसा, कॉमेडिक एज इट कैन से. हास्य रसा आपको लाफ्टर के लिए, स्माइल के लिए, mirth के लिए मजबूर करेगा. नेक्स्ट इज करुणा रसा. करुणा रसा आपको encourage करेगा to have sympathy with something, some character, to have compassion, to have mercy. नेक्स्ट इज रौद्र. रौद्र इज आपके अंदर एक गुस्से की भावना आएगी. यू विल फील लाइक फ्यूरियस. नेक्स्ट वीर रसा. वीर रसा में यू विल फील heroism kind of feel कि I can do this, I can do that, I can conquer over something going on wrong in the society. Next is Bhayanaka. Bhayanaka will evoke the feeling of horror or terror. Next is Bibhatsa. Bibhatsa will create the feeling of disgust और सम काइंड ऑफ एवर्जन. इस तरीके के सीन जिसको देखकर आपके दिल में ऐसा फील आ जाए कि छी कितना बुरा हो रहा है ये, समथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट इज अद्भुतम. अद्भुतम इज व्हेन यू आर फुल ऑफ wonder or amazement, you see something extremely spectacular, that is adbhut feeling. तो ये तो हुए हमारे 8 रस, 8 रसास propounded by Bharata Muni in Natya Shastra. Ninth rasa, there is a ninth rasa. Ninth rasa was added by later authors, which is called Shanta rasa. This edition had to undergo a good deal of struggle between the 6th and 10th centuries, you can say, before it could be
accepted by majority of philosophers and expression नवरसा, आप लोगों ने सुना होगा नवरसा. नवरसा इस शांत रसा के ऐड होने के बाद ही आया है. नवरसा केम इन टू वोग आफ्टर दिस नाइन्थ रसा. शांत रसा, पीस और ट्रैंक्विलिटी वॉज एडेड. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ध्वनि थ्योरी. ध्वनि वैसे तो साउंड को कहा जाता है, लेकिन किस तरीके से ये थ्योरी, ये साउंड एस्थेटिक्स में वर्क करता है, दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड. रसा थ्योरी तो हमने समझ ली अच्छे से. रसा थ्योरी का मतलब क्या है कि हम अफेक्ट होते हैं किसी बुक को पढ़कर, किसी थिएटर को देखकर. स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन एस्थेटिक थ्योरीज, वी टॉक अबाउट द पोइट्री. Rasa theory and Dhwani theory are most important poetic theories of ancient India, and Dhwani theory is basically a semantic theory. Semantic means related to meanings, we can say. रसा सिद्धांता एक अफेक्टिव थ्योरी है, क्या अफेक्ट होता है रीडर्स पर. और ध्वनि थ्योरी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से रिलेटेड एक थ्योरी है. ठीक है. सो किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों चीज़ों के बीच में. ध्वनि थ्योरी इज़ अ सिमेंटिक थ्योरी, दिस इज द वर्ड यू कैन यूज, एंड रसा थ्योरी इज एन अफेक्टिव थ्योरी. You need to know the difference between the propounders as well. Though it is Bharata who is credited with having originated the Rasa theory, भारत मुनि ने originate की थी, लेकिन उसको एक systematic poetic principle approach अभिनव गुप्ता ने provide की थी रसा theory को. And Anandavardhana was the chief exponent of Dhwani theory. Let us know about the primary text that deals with Dhwani. It is Dhwani Avloka. The primary text which deals with Dhwani is Dhwani Avloka, and the Dhwani theory considers the indirectly evoked meaning or suggestivity as the characteristic of literary utterance. ध्वनि एक बहुत ही important concept है संस्कृत aesthetics में. ध्वनि का literally mean we can say is suggestion. Anandavardhana, the great exponent of Dhwani, maintained that it is the soul of poetry. जिस तरीके से प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी बोला जाता है, उसी तरीके से वी कैन से ध्वनि इज द सोल ऑफ पोइट्री. वी कैन से ध्वनि इज द लेयर ऑफ मीनिंग बियॉन्ड डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन. ये दोनों भी मतलब हो सकते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी एक लेयर है ध्वनि की. डेनोटेशन कॉनोटेशन मीन्स कि यू आर मेकिंग जस्ट द कंसेप्ट बेस्ड मीनिंग और यू आर मेकिंग द लिटरल डिक्शनरी मीनिंग. ये दोनों तो मतलब हैं ही. अगर हम किसी भी वर्ड को डिकोड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वी विल इधर हैव टू गो फॉर डेनोटेड मीनिंग और कॉनोटेड मीनिंग. बट किस तरीके से ये ध्वनि थ्योरी वर्क करती है, दैट वी विल अंडरस्टैंड विद 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर एग्जाम्पल्स. हमारे जो संस्कृत क्रिटिक्स रहे हैं, उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ वर्ड डिस्क्राइब किए हैं. वन इज अभिधा, सेकेंड इज लक्षणा, थर्ड इज व्यंजना. अभिधा इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, ऐसा मीनिंग जो कि आप डिक्शनरी में पाएंगे. लक्षणा उस वर्ड के किसी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड मीनिंग. और व्यंजना पोइटिक या मेटाफिजिकल लैंग्वेज को यूज करना एंड देन टू ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग एज अ होल. अब इन्हीं मीनिंग्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले लेते हैं अभिधा. अभिधा इज लिटरल मीनिंग, जो मीनिंग आपका डिक्शनरी में है. इफ़ आई से चिल्ड्रन लव लिसनिंग टू फेरी टेल्स, तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फेरी. फेरी का एक नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग है परी. तो अगर हम फेरी का नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग जानते हैं उस सेंटेंस में, और उस सेंटेंस में कोई खास डेकोरेटेड मीनिंग है भी नहीं, सो देन वी विल से इट इज़ अभिधा. अब हम सब जानते हैं कि परियों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अगर हम किसी पर्सन को परी से कंपेयर करते हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी विल कॉल कैरेक्टरिस्टिकल मीनिंग. लेट अस टेक सम नेम. द मोस्ट कॉमन नेम ऑफ अ गर्ल, पूजा. पूजा एक परी है. सो इज पूजा रियली अ परी इन लिटरल सेंस? नो. मे बी इन कैरेक्टरिस्टिकल सेंस, yes, पूजा कैन बी कॉल्ड अ परी. फाइन. सो कैरेक्टरिस्टिकल मीनिंग लक्षणा. जब हम कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके उस वर्ड के मीनिंग को जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लक्षणा मीनिंग.
Next is Vyanjana meaning. Vyanjana meaning is poetic and metaphysical meaning. We can say, for example, take a sentence. एक सेंटेंस बोला जाता है, वेरी सिंपल सेंटेंस, सुबह के 10 बज गए। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, साधारण है, लेकिन हर इंसान के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग अलग है। एक ऐसा पर्सन हु इज़ अ वॉचमैन, दैट पर्सन विल से सुबह के 10 बज गए, अब मेरी छुट्टी हो गई। ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसको ऑफिस जाना है, दैट पर्सन विल से 10 बज गए, मुझे ऑफिस जाना है। हाउस वाइफ विल कनेक्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विद ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। और बच्चे, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, स्कूल किसी को नहीं जाना होता है जनरली, तो बच्चे इसका मतलब लेंगे कि उनकी क्लासेस अब शुरू होने वाली हैं। Okay, a priest will try to connect it with all the worshippings kind of thing. एक ही सेंटेंस है, लेकिन हर इंसान के लिए उसका भावार्थ, उसका मीनिंग अलग अलग है। So in this way, the third word Vyanjana reaches the soul and gives the suggested extraordinary meaning of the word. It is also called Dhwani. Basically, Dhwani is created by Pada, which combines to form Vakya, and from Vakya, Rasa Bhava is generated. तो पहले ध्वनि थ्योरी में हम पदा को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वाक्य को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करने के बाद एक रस का भाव उत्पन्न होता है। So these are the Indian aesthetic theories basically, except for the last one, which I'll make you revise. Last one is not Indian. Sphota, Auchitya and resistance to theory. This we will cover in next part of the video. And please let me tell you, January exam admissions are over in the academy. Please do join the classes always at least 4 months in advance. We do not believe in shortcut studies at all. Always understand the concepts. No rote learning is needed in literature other than few dates actually. With this step, I am ending the video. For 2022 June University and entrance exams, the admissions are still open. Click on the admission query link in description of this video. Thanks for getting connected with us and best of luck for your exams.